Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I'm Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो BNSS की धारा 35 को डिस्कस कर रहे हैं। 35 अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट का जो पुलिस अरेस्ट करती है वो सेक्शन 35 BNSS की धारा में यह उसको पावर है। सेक्शन 35(1) के अंतर्गत एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। सेक्शन 35 का ए बताता है हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 35 का बी बताता है अगेंस्ट हु ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड एंड क्रेडिबल made and credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years, which may extend to 7 years, whether which a without fine, if the following conditions are satisfied, namely पहला कंडीशन होना चाहिए द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। दूसरा पॉइंट होना चाहिए द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी a point to prevent such person from committing any further offence, to proper investigation of the offence, to prevent such person from causing the evidence of the offence, the disappear to tampering with such evidence in any manner, to prevent such person from making a inducement, threat, promise to any person acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court. The police officer, as unless such person is arrested, is present in and the police officer shall record while making such arrest his reason in writing, provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this section, recorded the reason in writing for not making the arrest, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine, or with death sentence, the police officer had reason to believe on the basis of that information that such person is committed the said offence, who has been proclaimed as an offender, either under the Sanhita or by order of the state government, in which position anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property, and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such things, which obstruct a police officer while the execution of his duty, who has escaped, attempt to escape from the law custody, who is reasonably suspected of being deserted from any of the armed force of the Union, who has been concerned against whom a reasonable complaint has been made, credible information has been received, is a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any committed at any place of out of India, if committed in India, would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to apprehended detain in custody, apprehended with detain in custody में उसे detain करना in India, who being a released convict commit a breach of any rule made under subsection 5 of section 394, for whose arrest any requisition, whether written and oral, has been
received from another police officer provided the requisition specify the person to and be arrested, the offense, the cause from which the arrest is to be made, and it appeared therefore that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition, subject to provision of section 39। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। सेक्शन 36 बताता है कि आपको अरेस्ट को बनाने के लिए प्रोसीजर क्या है। उसके बाद आपको सेक्शन डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर का डिजिग्नेटेड क्या है 37 में बताया जाएगा। सेक्शन 37 राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन मीट एन एडवोकेट हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन के दौरान यदि आप किसी भी एडवोकेट से मिलना चाहते हैं तो वो हमें सेक्शन 38 BNS में जिक्र किया जाता है। अरेस्ट टू ऑन रिफ्यूजल टू गिवन नेम एंड रेसिडेंस, नेम और रेसिडेंस से आप अरेस्ट के समय रिफ्यूज़ करते हैं वो सेक्शन 39 हमें जिक्र करता है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन जो होता है जो द्वारा जो अरेस्ट होता है वो सेक्शन 40 हमें डिटेन करता है। इसमें क्या बताता है, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट कॉज बी अरेस्टेड में पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस commit a non-violable and cautionable offence, any proclaimed offender, and without unnecessary delay, but within 6 hours for such arrest, shall make over a cause to be made over any person so arrested to police officer. In the absence of police officer, take such person, cause him to be taken in custody to nearest police station। वो भी प्राइवेट पर्सन द्वारा ये कोजनेबल ऑफेंस या नॉन कोजनेबल ऑफेंस में यदि अरेस्ट करता है तो उसे पुलिस के सामने 6 घंटा के अंदर उसे पेश कर देना है। विदिन 6 आवर्स, 6 आवर के अंतर्गत उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसे उस व्यक्ति को प्रेजेंट करना है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट द्वारा जब अरेस्ट होता है वो सेक्शन 41 में अरेस्ट किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स फॉर अरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर आर्म फोर्स जो मेंबर्स का जो सुरक्षित होता है उसको अरेस्ट करते हैं सेक्शन 42 में। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट को हम कैसे बनाते हैं ये सेक्शन 43 हमें जिक्र करता है। सेक्शन 44 हमें बताता है सर्च ऑफ प्लेस इंटर बाय पर्सन साउट बी अरेस्टेड। सेक्शन 48 बताता है परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शंस। सेक्शन 46 बताता है पर्सन अरेस्टेड to be informed of ground of arrest and right of bail। 47 every police officer person arresting person without warrant shall be forthwith the communicated। सेक्शन 48 बताता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू रिलेटिव या फ्रेंड। रिलेटिव या फ्रेंड को यदि आप अरेस्ट के बारे में बताते हैं वो सेक्शन 48 बताता है। सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन, सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन सेक्शन 49 जिक्र करता है। सेक्शन 50 जिक्र करता है पावर टू साइज ऑफेंसिव वेपन्स, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड रिक्वेस्टेड ऑफ पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 51 बताता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जब एग्जामिनेशन होता है जब किसी व्यक्ति का जो रेप होता है उसमें जो एक्यूज का जो एग्जामिनेशन होता है वो सेक्शन 52 में होता है। इसका मतलब होता है व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप एंड अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग that the examination of his person will afford evidence as to commission of such offence, it shall be lawful for the registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority in the absence of such a practitioner within in radius of 16 kilometers from the place where the offence has been committed
by any other registered medical practitioner acting at the request of any police officer and any persons acting in good faith, he add and under his direction to make such the examination of arrested person and to use such force as reasonably necessary for the purpose. Examination of arrested person by medical practitioner. सेक्शन 53 डील करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। जो अरेस्टेड पर्सन उसका आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 54 में किया जाता है। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिस्प्यूट द सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के यदि आपको अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस द्वारा प्रोसीजर होता है, वो सेक्शन 55 का 1 में जिक्र किया गया। सेक्शन 56 में बताया गया हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन। हेल्थ और सेफ्टी, जो अरेस्टेड पर्सन है उसके हेल्थ और सेफ्टी के लिए सेक्शन 56 डील करता है। जो कस्टडी में चला गया है जो व्यक्ति, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ए पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज। एक्यूज का हेल्थ और सेफ्टी के लिए सेक्शन 56 हमें जिक्र करता है अरेस्टेड पर्सन का। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। यह सेक्शन 57 बताता है पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन मोर देन 24 आवर। कोई भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटा के तक डिटेन नहीं कर सकती। 24 घंटा के बाद उसे किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस इज reasonable and such period shall not, in the absence of a special order of magistrate under section 187, exceed 24 hours exclusively of the time necessary for the journey for the place of arrest the magistrate for such having jurisdiction या not। जर्नी का जो समय होगा उसको, माने जो पुलिस जब आपको अरेस्ट करेगी तो जर्नी का टाइम है उसको 24 घंटा में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट एप्रीहेंशन, पुलिस रिपोर्ट का एप्रीहेंशन करना, आशंका करना, तो सेक्शन 59 में हम इसको जिक्र करते हैं। इसमें हम प्रोटेस्ट रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। यदि पुलिस के अगेंस्ट जो भी रिपोर्ट आया है वो उस पर हम प्रोटेस्ट रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 59 ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम if and so district and sub-divisional magistrate the case of all person arrested without warrant within the limit of the respective station whether such person have been admitted to bail या otherwise। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, जो एप्रीहेंडेड पर्सन जो डिस्चार्ज होगा सेक्शन 60 में। पावर ऑन स्केप ऑफ परसुएंस ऑफ रीटेक सेक्शन 61। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता सेक्शन 62। No arrest shall be made except in accordance with the provision of this Sanhita, any other law for time being in force, provided arrested। Process to compel appearance for summon। समन के लिए सेक्शन 63 BNS में जिक्र करता है। समन हैव टू सर्व, समन को जब सर्व करते हैं सेक्शन 64 हमें जिक्र करता है। फिर उसके बाद सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेशन बॉडी फॉर्म एंड एसोसिएशन सोसाइटी। यदि हम किसी कॉर्पोरेशन को या किसी कंपनी को या बड़ी फॉर्म को या सोसाइटी को यदि हम समन भेजते हैं सर्व करते हैं तो सेक्शन 65 हमें जिक्र करता है। सर्विस व्हेन पर्सन समन फॉर कैन नॉट बी फाइंड, यदि कोई व्यक्ति समन नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो सेक्शन 66 में जिक्र किया जाता है। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड बी बिफोर प्रोवाइडेड सेक्शन 67। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट को यदि हम सर्विस देते हैं तो वो सेक्शन 68 में, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट को यदि हम समन भेजते हैं तो वो सेक्शन 68 को जिक्र करता है। सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट, यदि आउटसाइड लोकल लिमिट से इसके बाहर यदि हम समन भेजते हैं तो सेक्शन 69 जिक्र करता है। सेक्शन 70 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन द सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट सेक्शन 71 हमें डील करता है। सर्विस ऑफ समन अदर ऑन विटनेस को यदि हम कोई समन भेजते हैं तो सेक्शन 71 BNSS की धारा में जाता है। वारंट ऑफ अरेस्ट वारंट जो होता है, फॉर्म ऑफ द वारंट ऑफ अरेस्ट
एंड ड्यूरेशन। सेक्शन 72 बताता है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू बाई ए कोर्ट अंडर सनीता शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। अरेस्ट वारंट में जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होता है और कोर्ट का सील होता है, कोर्ट का मोहर होता है। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इन कैंसिल बाय द कोर्ट विच इशू अंटिल इन एक्सक्यूट। जब भी वारंट जो होगा कैंसिल, वो न्यायालय द्वारा ही कैंसिल किया जा सकता है या इसको एक्सक्यूट किया जा सकता है, निष्पादन किया जा सकता है। पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी बी टेकन पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी बी टेकन एनी कोर्ट इशू ए वारंट फॉर एन अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डायरेक्शन डायरेक्ट बाय इंडोर्समेंट ऑन द वारंट that if such person executes a bail bond with sufficient security for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed, if directed, shall take such security and shall release such person from custody. The endorsement shall state the number of sureties, the amount in which and the person who arrested the warrant is issued are to respectively bond the time at which he is attended before the court. Whenever security is taken under the section, the officer to whom the warrant is direct shall forward the bond to the court. Warrant to whom directed. Section 74. Warrant may be directed to any person. Section 75. Warrant directed to police officer. Section 76. Notification of substance of warrant. Section 77. 78 बताता है द पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन एक्सिक्यूटिंग ए वारंट of arrest shall subject to be provision of section 73 of security without unnecessary delay, being the person arrested before the court before he is required by law to produce the such person. When warrant may be executed, section 79. When warrant may be executed, section 79. सेक्शन 80 बताता है वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शंस। सेक्शन 81 बताता है वारंट डायरेक्ट टू पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शंस। सेक्शन 82 बताता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हु वारंट इशू। सेक्शन 83 बताता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर whom such person arrested is brought. सेक्शन 84 बताता है प्रोक्लेमेशन पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो भोगाड़ा व्यक्ति है जो कस्टडी से भाग गया है या यदि समन या वारंट देने के बाद वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो उसको प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर मान लिया जाता है, भोगाड़ा व्यक्ति। इसको भोगाड़ा साबित करने का पावर किसे दिया गया? एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जो आरक्षी अधिकारी होता है, जो एसपी रैंक का होता है, जो एसपी होता है, उसे किसी भी व्यक्ति को भोगाड़ा साबित करने का अधिकार दिया गया है एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव whether after taking evidence or not that any person against whom a warrant has been issued by it is absconded in is cancelling himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation required him to appear to a specified place at the specific in not less than 30 days for the date of punishing such proclamation. The proclamation shall be published as follows. One, one it shall be publicly read at some conspicuous place of the town, village in which such person ordinarily resides. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or home estate in which such person ordinarily resides, some conspicuous place of such town or village. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन एब्सकॉन्डी, जब भगोड़ा व्यक्ति है उसकी संपत्ति का कुर्की जब्ती करना सेक्शन 85 बीएनएस की धारा सेक्शन 85 में किया जाता है।
आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर। जो प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर है जिसे भगोड़ा साबित किया गया है उसकी प्रॉपर्टी का कुकी जब्ती करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी पहचान करना। सेक्शन 86 में जिक्र किया है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। आप कुर्की जब्ती पर जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन कब क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 87 में जिक्र किया गया इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड एन ऑब्जेक्शन मेड टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी अटैच अंडर सेक्शन 85 विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट। यानी कुर्की जब्ती के 6 महीना के अंदर कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है अटैचमेंट प्रॉपर्टी पर अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन्स ऑन द ग्राउंड्स दैट द क्लाइमेंट ऑब्जेक्ट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 85 द क्लेम ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड into and may allow the disallowed in whole in part provide that any claim prefer and objections made within the period allowed by these subsections may in event of that of the claimant object be continued by legal representative release sale and restoration of attachment property अटैच कुर्की वाली संपत्ति को रिस्टोरेशन करना, सेल करना या उसे रीसेल करना, पुनः सेल करना। सेक्शन 88 हमें जिक्र करता है बीएनएस की धारा सेक्शन 88 अपील फॉर ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी कुर्की जब्ती हुआ, रिस्टोरेशन हुआ, उसका रिजेक्शन एप्लीकेशन का ऑर्डर या अपील कहाँ करेंगे, सेक्शन 89 में करेंगे। इशू ऑफ वारंट इन लीव इन एडिशन टू समन सेक्शन 90 हमें जिक्र करता है पावर टू टेक बॉन्ड या बेल बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस। सेक्शन 91 जिक्र करता है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। कहने का मतलब जो ब्रीच हो गया, जो बॉन्ड बना उसके में ब्रीच हो गया, टूट गया या अनुबंधन टूट गया, इस सिचुएशन में सेक्शन 92 जिक्र करता है। प्रोविजन ऑफ चैप्टर जनरल एप्लीकेबल समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 93। सेक्शन 94 हमें बताता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अदर थिंग्स। सेक्शन 95 हमें बताता है प्रोसीजर एज टू लेटर, भेजने का जो प्रोसीजर है लेटर्स के थ्रू वो हमें बताता है। सर्च वारंट सेक्शन 96 व्हेन सर्च वारंट में बी इशू, सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है वो सेक्शन 98 बताता है। एनी कोर्ट has reason to believe that a person whom a summon order under section 94 a requisition under subsection 1 of section 95 has been might be addressed would not produce the document or things as required by such requisition such document thing not known to be court to be in possession of any person. Search of place suspected to contain stolen property. First document 97 section 97 section 98 बताता power to decide certain publication forfeited and issue such warrant for same. सेक्शन 99 बताया एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फ्यूचर। यानी जो फॉर फ्यूचर में जो जब्ती है, जब्ती का जो डिक्लेरेशन है उसको खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देना। एनी पर्सन सेक्शन 99 बताता है एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर बुक अदर डॉक्यूमेंट रिस्पेक्ट ऑफ विच इज ए डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फ्यूचर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 98 when within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration apply to the High Court to set aside such declaration on the ground that the issue of the newspaper, the book, other document in respect of which declaration was made did not contain any such matter as is referred in subsection 1 of section 98. Every such application shall where the High Court consist of their
or more judges be heads and determined by a special bench of the High Court composed of their judge, and where the High Court consists of less than three judges, such a special bench shall be composed all the judges of the High Court. On the hearing of any such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature of tendency of the words. Signed visual representation contained in such newspaper in respect of which declaration for future was made. The High Court shall, it is not satisfied that the issue of the newspaper, the book of the document in respect of which the application has been made, contained any such matter as referred to subsection 1, section 98 set aside the declaration of for future. Where there is a difference of opinion among the judge forming the special bench, the decision shall be accordance with the opinion of the majority of those judges. Search for person wrongful confined. सेक्शन 100 हमें बताता है यदि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल यदि आप कंफाइन कर लिए उसका सर्च करने के लिए सेक्शन 100 बताता है एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन रीजन टू बिलीव एनी पर्सन कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेज दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस। उसके बाद पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल्स सेक्शन 101 हमें डिस्कस करता है। डायरेक्शन इटीसी सर्च वारंट सेक्शन 102 पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस ऑफ अलाउ सर्च सेक्शन 103 disposal of thing found of search and beyond jurisdictions section 104 recording of search and seizure through audio video electronic means section 105 power of police officer size and certain property section 106 attachment for future and restoration of property section 107 BNS की धारा डील करता है। सेक्शन मजिस्ट्रेट may direct search is presence section 108 section 109 power to impound document and produce section 1010 reciprocal arrangement regarding process सेक्शन 111 डिफिनेशंस क्लोज को बताता है reciprocal arrangements assistance in certain matter and procedure for attachment of and forfeiture of property। सेक्शन 112 बताता है लेटर रिक्वेस्ट टू competent authority for investigation in country or place outside India। सेक्शन 113 लेटर of request for a country place outside India to court and authority for investigation in India। सेक्शन 140 बताता है असिस्टेंस इन सेक्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन। सेक्शन 150 बताता है असिस्टेंट इन रिलेशन टू ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 160 बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑन लॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेक्शन 170 बताता है सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 180 बताता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइज ऑफ फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। सेक्शन 190 बताता है नोटिस ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी और जो जब्ती किया हुआ संपत्ति का नोटिस करना वो सेक्शन 190 में किया जाता है। फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केस एक निश्चित केस में प्रॉपर्टी को जब्ती करना सेक्शन 120 बताता है। फाइन इन लीव ऑफ फॉर फ्यूचर सेक्शन 121 जिक्र करता है। सर्टेन ट्रांसफर टू नल एंड वाइड सेक्शन 122 procedure in respect of letter of request section 123 application of this chapter section 124 section 125 जिक्र करता है security for keeping the peace for good behavior security for keeping peace on conviction section 126 security for keeping peace in other cases security section 127 security for good behavior for person disseminating certain matter section
128 security for good behavior from suspected person. Section 129 security for good behavior from habitual offender. Section 130 order to be made. Section 131 procedure in respect of person present in court. Section 132 summon and warrant in case person not as present. Section 133 copy of order to accompany summon या warrant. Section 134 power to dispense with personal attendance. 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 Section 135 inquiry as to truth of information. Section 136 order is gives security. Section 137 discharge of person in informed against. Section 138 commencement of period for which security is required. Section 139 content of bond, power to reject security. Section 140 imprisonment in default of security. Section 141 power to release, power to release person imprisoned for filing to give security. Section 142. Section 144 order for maintenance of wives, children and parents. Order to maintenance of wife, children and parents. वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स का मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 144 जिक्र करता है बीएनएस की धारा। उसके बाद सेक्शन 145 प्रोसीजर अंडर सेक्शन 144 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। प्रोसीजर को बताता है। अल्ट्रेशन इन अलाउंस यानी भत्ता में जो भत्ता है उसमें परिवर्तन करना। सेक्शन 146 डिस्पेरेजल ऑफ असेंबली बी यूज ऑफ सिविल फोर्स। सेक्शन 148 यूज ऑफ आर्म फोर्स टू disperse assembly. Section 149 power to certain armed force officer to disperse assembly. 150 उसके बाद 151 नो 151 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एक्ट। सेक्शन 141 और 149 एंड 140 150 151 नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन एनी एक्ट प्रपोज डन अंडर सेक्शन 140 और 149। Section 152 conditional order for removal of nuisance. Section 153 service या notification of order. Person to whom order in address to obey the sum cause. 154 Section 155 penalty for failure to comply with Section 154. Procedure where existence of public right of deny. 156 procedure where person against whom order is made under section 152 appear to show cause. 157 power of magistrate to direct local investigation and examination of an expert. Section 158 power of magistrate furnish written instruction etc. 159 procedure order being and made absolute and consequence of disobedience. Section 166 injunction of pending inquiry. Section 161 magistrate may prohibited repetitions continuance of public nuisance. Section 162 power to issue order urgent case nuisance apprehended danger. Section 163 procedure where dispute concerning land water is likely for cause breach या of peace. Section 164 power to attach subject to dispute and appoint receiver. Power to attach subject of dispute and appoint receiver. 165 dispute concerning right use of the land and water. 166 local inquiry. 167 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निज ऑफेंस को पुलिस को रोकने का पावर क्या है? प्रिवेंट रोकने का पावर है। सेक्शन 168 इंफॉर्मेशन डिसीजंस टू कमिट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 169 अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 170 अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी अपराध को रोकने का या अरेस्ट करने का पावर 170 में है। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी
पब्लिक प्रॉपर्टी पर इंजरी होना, घायल हो रहा, उसको रोकना, सेक्शन 171 में पुलिस को पावर दिया गया। पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस, सेक्शन 171। इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड द पावर टू इन्वेस्टिगेट इंफॉर्मेशन इन कॉजनेबल केस, 173 में आप कॉजनेबल केस का इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन का पावर पुलिस को दिया गया 173 में, 173(1) में। उसके बाद 174 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉजनेबल केसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केस। नॉन कॉजनेबल केस में 174 सेक्शन अप्लाई होता है। 175 पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉजनेबल केस, 175 में कॉजनेबल केस में पुलिस को पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर 176 में बताता है। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, कैसे रिपोर्ट को सबमिट करेंगे वो 177 डिस्कस करता है। पावर टू हेल्ड इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करने का पावर 178 में। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर एटेंडेंस ऑफ विटनेस, सेक्शन 179। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, पुलिस द्वारा जब गवाह का एग्जामिनेशन होता है तो सेक्शन 180 में होता है। स्टेटमेंट ऑफ पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, सेक्शन 181। सेक्शन 182 नो इंड्यूसमेंट टू अपवर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, सेक्शन 183। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन 184 में किया जाता है। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का जो सर्च होता है 185 में। विच ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर्ड अनदर टू इशू सर्च वारंट, सेक्शन 186। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट इन 24 आवर, 187। रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, 188। रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस is deficient, 189। Case to be sent to magistrate when evidence too sufficient, 190। Complaint and witness not be required to accompany police officer and not be subject to restraint, 191। Diary of proceeding in investigation, पुलिस डायरी का इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग 192 में चलेगा। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यदि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन होता है तो पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है 193 में। पुलिस टू इंक्वायरी एंड रिपोर्ट एंड सुसाइड के केस में जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो 194 का बीएनएस की धारा लगेगी। पावर टू समन पर्सन, किसी व्यक्ति को समन भेजने का पावर क्या है, 195। इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, डेथ के कॉज में मजिस्ट्रेट द्वारा जो इंक्वायरी होता है 196 में। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, 197। प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, 198। ऑफेंस इज ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन, कंसिक्वेंस इंश्योरेंस, 199। प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस, सेक्शन 200। प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंस, 201 section। Offence committed by means of electronic communication letter etc, section 202। Offence committed to journey and way, section 203। Place of trial offence triable together, section 204। Power to order cases be tried different section division, section 205। अगले वीडियो में हम सेक्शन 206 के बारे में जिक्र करेंगे। हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल शैल टेक प्लेस, किस सिचुएशन में हाई कोर्ट यह डिसाइड करती है और वो अपने केस के बारे में जो संदेह है उसको कैसे जिक्र करती है, सेक्शन 206 में। पावर टू इशू समन एंड वारंट ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द लोकल जुडिक्शन, 207, सेक्शन 207। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, 208। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल अगले वीडियो में 208, 209 एंड 2010 माने 531 सेक्शन है पूरे बीएनएस में, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।